Hello children, how are you? Today I will teach you English Literature Chapter 3, I Miss My Mummy. It is on page number 18. Open your page number 18 on English Literature book. This chapter is about two friends, Raghu and Anu. This is chapter about two friends, Raghu and Anu. These are two friends, and we will read about these two friends, what they are doing, what they are playing with each other, what they like to do. Okay, so I will read this chapter, you will read after me. Okay, now come at this word, I miss my mummy. Read. Raghu and Anu are best friends. They love to play and spend time together. Raghu loves to go to Anu's house and play with her toys. Anu lives next door to Raghu. He always wants to be with Anu. Sometimes they sit in Anu's rocking chair. This is rocking chair. You can see on your picture. This is rocking chair. We call this rocking chair. And read story books. Raghu, next paragraph. Raghu has lots of story books. He takes his books to Anu's house and they play together in Raghu's large veranda. Next page. Raghu tells his mother about the fun he has at Anu's house. Anu tells her mother how they enjoy playing cricket in Raghu's courtyard. Mummy, Anu's mother, cooks delicious pasta and spicy kachoris. Mom, Anu has wonderful toys. Her aunt gets them from America. Next paragraph. Mom this, mom that. Raghu keeps on talking. Raghu's mother smiles and gives him a chance to jump in joy. Raghu, why don't you go to Anu's house and spend a lot of time there? Yay! Jumps Raghu. Mother helps Raghu in packing his things in a bag. Raghu is very happy now. He takes the bag and goes to Anu's house. Anu becomes happy to see Raghu. She says, "Come in, Raghu. What is there in your bag? Have you bought some new toys?" "No," replies Raghu. "These are my clothes and other things. I have come to spend a lot of time with you at your home. We will enjoy together." "That is really great. We will enjoy and read stories till late in the night," says Anu happily. They play together for some time. Then they read the stories in the rocking chair and watch cartoons on TV. Anu's mother calls them to have their dinner, but Raghu doesn't eat. He is not hungry. Surprising, isn't it? Turn over the page.
Now he does not want to play with toys anymore. He does not want to read stories in the rocking chair. He is missing his mother. He wants to go back home now. I want to go back home now. I want to sleep in my room and I am missing my mummy. He tells Anu and says bye to her. He comes back home and goes to his mummy. Mummy, Mom, where are you? Mummy, Mom, where are you? I'm back home. I was missing you, Mom, says Raghu. Mom comes and he hugs his mom. I also missed you, Raghu, says mother happily. He eats dinner and goes to sleep in his own cozy bed. Children, this was reading. You have also to read like this, in which way I was reading. Okay, now I will tell you about this story. इसमें क्या है, रघु और अनु दो फ्रेंड्स हैं. रघु को अनु के संग खेलना बहुत पसंद है. तो रघु जो है वो अनु के जस्ट बगल वाले घर में रहता है. वो हमेशा अनु के साथ रहना पसंद करता है. तो उसको कभी कभी वो लोग रॉकिंग चेयर पर बैठकर उनको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद होता था. ये दोनों लोग जो है रॉकिंग चेयर पर बैठते हैं और दे लव टू रीड बुक्स ऑन रॉकिंग चेयर. दिस इज रॉकिंग चेयर. रघु हैज लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक्स. रघु के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं. ही टेक्स हिज बुक टू अनुज हाउस एंड दे रीड टुगेदर. और वो अपनी बुक्स को अनु के हाउस पे ले जाता है और उसके साथ पढ़ता है. अनु ब्रिंग्स हर क्रिकेट किट टू रघुज हाउस एंड दे प्ले टुगेदर इन रघुज लार्ज वेरांडा. अनु के पास एक क्रिकेट किट है जो रघु के घर पे वो ले जाती है और उसके वेरांडा में खेलती है. आपको क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो वेरांडा आपका खुला एरिया होता है आपके घर में. दैट इज कॉल्ड वेरांडा. रघु टेल्स हिज मदर अबाउट द फन ही हैज एट अनुज हाउस. रघु अपनी मदर से अनु के घर पे जो उसने फन किया था उसके बारे में वो बता रहा है. अनु टेल्स हर मदर हाउ दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट इन रघुज कोर्टयार्ड. और अनु जो है अपनी मदर से बताती है कि उसने कैसे रघु के कोर्टयार्ड में उसने एंजॉय किया. मम्मी अनुज मदर कुक डिलिशियस पास्ता एंड स्पाइसी कचौरीज. जो रघु है वो बताता है कि अनु की जो मदर है वो बहुत टेस्टी डिलिशियस पास्ता बनाती हैं और स्पाइसी कचौरीज बनाती हैं. क्या क्या बनाती हैं? डिलिशियस पास्ता एंड स्पाइसी कचौरीज. डू यू लाइक कचौरीज एंड पास्ता? ओके. मॉम, अनु हैज़ वंडरफुल टॉयज. हर आंट गेट्स देम फ्रॉम अमेरिका. रघु अपनी मम्मी से बताता है कि अनु के पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं जो उसकी आंट अमेरिका से लाई हैं. ओके. मॉम दिस, मॉम दैट. रघु कीप्स ऑन टॉकिंग. आप लोग जब बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो मम्मी को भी बताते हो, मम्मी ये, मम्मी वो, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा. इस तरीके से वो अपनी बात को कहता ही चला जा रहा था. रघु's mother smiled and gives him a chance to jump in joy. रघु की मम्मी स्माइल करती है उसकी बात सुन के और उसको एक चांस देती है कि वो एंजॉय करे. वो खुद खुशी के मारे कूद जाता है. तो वाई डोंट यू गो टू अनुज हाउस. तो वो खुश होके बोलती हैं कि तुम अनु के घर क्यों नहीं चले जाते हो एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. और तुम वहाँ खूब सारा टाइम स्पेंड करो. ये जम्प्स रघु खुश होके कूद पड़ता और बोलता है ये. मदर हेल्प्स रघु इन पैकिंग हिज थिंग्स इन अ बैग. रघु की जो मदर थी वो उसका सारा सामान पैक करके बैग में पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है. रघु इज़ वेरी हैप्पी नाउ. ही टेक्स द बैग एंड गोज ऑन अनुज हाउस. रघु जो है वो बहुत खुश हो गया है और अपना बैग लेके अनु के घर चला जाता है. अनु बिकम्स हैप्पी टू सी रघु. जब अनु रघु को देखती है अपने घर पे तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, कम इन रघु, व्हाट इज देयर इन योर बैग. रघु अंदर आओ, तुम्हारे बैग में क्या है. हैव यू बॉट सम न्यू टॉयज. क्या तुम नए खिलौने लाए हो. नो रिप्लाइज रघु. रघु कहता है नहीं. दीज आर माई क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स. नहीं, ये मेरे कपड़े और कुछ और चीज़ें हैं. आई हैव कम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू एट योर होम. वी विल एंजॉय टुगेदर. मैं यहाँ पर तुम्हारे संग बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को आया हूँ और हम लोग बहुत सारा समय एक साथ
स्पेंड करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे एक साथ। दैट इज़ रियली ग्रेट। तो अनु बहुत खुश हो जाती है, अरे कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, जब आपको किसी से कुछ कहना हो तो आप बोलेंगे दैट इज़ रियली ग्रेट, वी विल एन्जॉय एंड रीड स्टोरीज टिल लेट इन द नाइट। आपका जब फ्रेंड आपके साथ आता है तो आप लोग खूब सारी प्लानिंग करते हो कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो शी इज सेइंग कि वी विल एन्जॉय एंड रीड स्टोरीज टिल लेट इन नाइट। कहती है हम लोग खूब सारी स्टोरी पढ़ेंगे और रात तक पढ़ेंगे। सेज अनु हैप्पीली, खुश होकर अनु बोलती है। दे प्ले टुगेदर फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय तक खेला एक साथ। देन दे रीड द स्टोरीज इन द रॉकिंग चेयर, फिर उन्होंने कुछ देर बाद रॉकिंग चेयर पर स्टोरीज पढ़ी और कार्टून्स देखे टीवी पर। अनूज मदर कॉल देम टू, उसके बाद अनु के घर पे रघु गया था तो अनु की मदर ने उनको डिनर के लिए बुलाया, लेकिन रघु ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि बच्चों आप लोग जब खेलते हो ना तो खेलने में इतने मस्त हो जाते हो कि आपको भूख प्यास कुछ लगती ही नहीं है। तो वो इतना खुश था, वो इतना ज़्यादा खेल रहा था कि रघु को भूख ही नहीं लगी जब अनु की मम्मी ने उसको डिनर पे बुलाया। ही इज़ नॉट हंग्री, उसको भूख नहीं लगी थी। सरप्राइजिंग इज इट, क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि भूख ही ना लगे किसी को। सो नाउ ही डज नॉट वॉन्ट टू प्ले विद टॉयज एनीमोर। बहुत देर हो गई खेलते खेलते, अब उसको खेलने का मन नहीं कर रहा था, अब और मन नहीं कर रहा था खेलने का। ही डज नॉट वॉन्ट टू रीड स्टोरीज इन द रॉकिंग चेयर, और अब वो रॉकिंग चेयर पर स्टोरी बुक भी नहीं पढ़ना चाह रहा था। ही इज़ मिसिंग हिज मदर, वॉन्ट टू गो बैक होम नाउ। और अब उसको अपनी धीरे धीरे मम्मा की याद आने लगी, और जब उसको मम्मा की याद आई तो वो अपने घर वापस जाना चाह रहा था। आप लोगों को संग भी ऐसा ही होता है ना, जब आप बहुत देर कहीं खेलते हो, थोड़ी देर बाद फिर आपको बोरिंग लगने लगता है और फिर आपको अपनी मम्मा की याद आने लगती है। आई वॉन्ट टू गो बैक होम नाउ, कहता है कि अब मैं जाना चाहता हूँ घर। आई वॉन्ट टू स्लीप इन माई रूम एंड मिसिंग माई मम्मी, कहता है कि मैं अपने कमरे में सोना चाहता हूँ। आप सब लोगों को अपनी मम्मा के पास ही सोना अच्छा लगता है ना, इसी तरह से रघु को भी अपनी मम्मा के पास ही सोना था। तो कहता है मैं अपने रूम में अपनी मम्मा के पास सोऊंगा। आई एम मिसिंग माई मम्मी, मैं अपनी मम्मा को मिस कर रहा हूँ। ही टेल्स अनु एंड से बाय टू हर, अनु से वो बाय करता है। ही कम्स बैक होम एंड गोज टू हिज मम्मी, वो अपने घर वापस आता है अपनी मम्मी के पास। मम्मी मॉम वेयर आर यू, आई एम बैक होम। कहता मम्मी को ढूंढते, कहता मम्मी मॉम आप कहाँ हो, मैं वापस आ गया हूँ। आई वॉज मिसिंग यू मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। सेज रघु। मॉम कम्स एंड हग्स हिज होम, हग मीन्स गले लगाना। मम्मा खुश होके आती है और अपने रघु को हग करती है। आई ऑल्सो मिस्ड यू रघु, रघु उसकी मम्मा उससे कहती है मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी रघु। ही ईट्स हिज डिनर, वो डिनर करता है एंड गोज टू स्लीप इन हिज ओन कोजी बेड, और अपने बेड में अच्छे से वो सो जाता है, क्योंकि नींद तो अपने ही घर में आती है अपनी मम्मा के पास। तो इस तरह से आपने देखा कि यू रीड अबाउट द टू फ्रेंड्स रघु एंड अनु। Raghu goes to Anu's house and they both of them played together and they enjoyed lot of fun. Raghu took some clothes and other things in his bag and goes to Anu's house. Anu see him and looks very happy, and after some time they enjoyed a lot. They read so many books on rocking chair, and after some time they watch cartoon on TVs. Then they play in veranda in Raghu's house, and Anu's house courtyard. And after some time Anu's mother called them for the dinner, but Raghu did not eat it because he was not hungry. And after some time he was feeling bored and he was missing his mother, and he wants to go back his home. He wants to sleep in his own room. So he says to Anu, bye, I am going to my house. And when he goes to his house, Raghu goes to his house, he calls his mama, mom, where are you? I was missing you. And his mother, when his mother see Raghu, he hugs him, and she also says, I was also missing Raghu. And Raghu had dinner with his mother and took deep sleep in his cozy bed. This was the chapter about Raghu, and the chapter's name was I Miss My Mummy.
I will give you worksheet where the questions were based on based on this chapter. You should know the answer of all the questions. When you will read this chapter thoroughly, then you will be able to know what is the right answer and what is the wrong answer. The answer will be in the form of true and false, tick mark, and the question answer also will be there. Okay, so read it properly and do preparation for your examination. Okay, till then, bye.